Have you got the copies? Then say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Now, what we were saying is, understand the concept first, okay? The Bayes theorem, ये कहाँ से आए, मतलब है क्या चीज है? It's very simple. Only एक फॉर्मूला आपको याद रखनी है बस, that is it. Rest, पहले कॉन्सेप्ट सीखो. जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास है, I have to write. So we got a conditional probability. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने क्या बताया कि भाई आपको फॉर एग्जांपल एक वेन डायग्राम बता रहा हूं मैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स है, से 1 to 10 मेरे पास नंबर्स है, ठीक है? इसमें दो सेट्स मेरे पास हैं. If I have got an A set, in A set I got say for example 1, 2, 3 and 4. I got 1, 2, 3 and 4. If I have to say what is the probability of, क्योंकि रेस्ट तो बाकी है ना 10. The total sample space is 10. Total sample space is, probability says what is your favorable events divided by the total sample space, that is the probability. Simple as it is. This is the only thing we have here, right? So what is the favorable events divided by the total events or total sample space divided by sample space, I could say. Okay? अगर यहाँ पे इसके पास कितने A जो है मेरे पास, इसके पास कितने events हैं? 4. 1, 2, 3, 4. So favorable events are 1, 2, 3, 4. So favorable events are 4. What are the total? So 4 by 10 निकलेगी probability of A. Right? If I have also the B now, if I also what? B में 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, फिर 7, 8, 9 and 10 बाहर है, ठीक है? Okay? So what is the probability of B? B में कितने हैं? 5, 6, 3, 4. So again the favorable events for B, if I say what is the probability of B? Probability of B is gonna be 4 by 10. फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, यही तो आज तक सीखा ना हमने, ठीक है? लेकिन अब मैं बता रहा हूं, आपको समझ आ रहा है बेटा? अच्छे से ध्यान दो. लेकिन अब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं. मैं बता रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी ए बताओ मुझे. मैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? यू टेल मी मुनज़्ज़ा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन दिस सिनेरियो? 4 by 10 again. Why? Because 1, 2, 3, 4. A has 4 elements and total is 10. But now what I'm saying is कि आप मुझे probability A ही बताओ. What is the probability of A? But when the B is given, when the B is, जब B आ चुका है, जब B, उस वक्त probability of A क्या है? तो जब B आ चुका है, that B is this thing 3, 4, 5, 6. इसमें मुझे बताना है what is the probability of A? What is the probability of A given B? जब मैंने पहले बताया given B, तो मैं इनकी बात ही नहीं कर रहा. 7, 8, 9, 10. क्यों? क्योंकि मेरी सैंपल स्पेस अब B है. अब मेरी सैंपल स्पेस पूरा सैंपल स्पेस नहीं है, वो रिड्यूस हो गया. दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड टू ओनली B. टू ओनली, डज इट मेक सेंस? नाउ माय सैंपल स्पेस इज रिड्यूस्ड टू B. सो डेफिनेटली जो मेरा डिवाइड होगा ना, वो 10 से नहीं होगा, वो डिवाइडेड बाय B से, व्हाटएवर द B इज, व्हाटएवर द B मेरे पास 1, 2, 3, 4 उसके है ना, B का 4 ही है ना, B का कितना है? तो 6 कहां से आएगा? B जितना है वही सैंपल स्पेस है. क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पहले कि इसमें से एक लड़की चूज करनी है, क्लास का रोल 30 है. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एनी गर्ल? तहलील. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग तहनील? दैट विल बी 1 divided by 30. Because how many tahneel are here? 1. So favorable events are 1. How many girls total? So 1 by 30 will be the probability of tahneel, right? But now I have given B. I am saying I want to select some girl, okay? If I say I want to select one girl from the class, what is the probability of selecting that girl? 1 by 30. 1 by, so will it be tahneel or some other girl? It will be 1 by 30, because selecting one girl will have one favorable event divided by 30. Now question is, I am saying what is the probability of selecting a girl, but other event has occurred that the girls which have participated in the valedictory function. अब valedictory function में सिर्फ 5 लड़कियों ने हिस्सा लिया. अब valedictory function में कितनों ने लिया? 5 लड़कियों ने लिया. तो क्या अब मेरी सैंपल स्पेस 30 है कि 5 है? क्योंकि 5 ही लड़कियां ना, सो 5 ही लड़कियां थी जिन्होंने हिस्सा लिया था. तो अब मैं अगर मैं कंडीशनल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं,
तो मेरी सैंपल स्पेस पूरा क्लास नहीं होगा, इट विल बी ओनली दोज गर्ल्स विच हैव पार्टिसिपेटेड। उसमें आप मुझे बताना है कि मैं उसमें से कुछ सिलेक्ट कर रहा हूं। सेम सिचुएशन हियर कि अब मैं पूरा सैंपल स्पेस नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर बी आ चुका है, बी, नाउ बी हैज कम अप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? इफ आई आस्क सादिया दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो जब मैं ए की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग ओनली ऑफ दिस सर्कल, जब मैं बी की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग ऑफ दिस सर्कल। अब मैं कह रहा हूं कि जो गर्ल्स हैं ये वो गर्ल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन द वैल्यूटरी फंक्शन, एंड आई एम सेइंग हु आर द गर्ल्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि जिन्होंने, वो जो ए में है मगर उन्होंने वैल्यूटरी फंक्शन भी किया है। ठीक है, से फर्ज कीजिए ए आर दोज गर्ल्स विच प्लेड बैडमिंटन, the Sadia's group and Munazza's group, and this is the group which joined the valedictory function. But among badminton girls, 2 girls also joined the valedictory function. So I am saying in other words, who are the badminton girls who also joined the valedictory function? So I have to see first the whole sample spaces, 4, and out of them how many can be there? 2. That is what? That is this guy, these guys. So in other words, I am saying if I have to say what is the probability of A given B, that is nothing but this intersection part. I am saying given B, B is this thing. इस B में A कौन है? वो ये पार्ट है ना, इस सारे B में A कौन है? ये दूसरे लफ्ज में ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलती है कि A और B में कॉमन क्या है, right? That is the intersection part. So therefore, if I have to say what is the probability of A given B, that is gonna be, what will be the divide, the total, what will be total? No, don't say in terms of 4, say in terms of A and B. What will be my sample space? B, probability of B. So divided by probability of B, because now मुझे पूरी sample space नहीं देखनी, only probability of B देखना, number 1. Number 2, what is the probability of A in that? That is A intersection B, इसकी probability. Only what is the intersection part? Got it? पूरा A नहीं आएगा, सारा A नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन के बगैर जो A में है वो B का हिस्सा नहीं है, वो वैलिडरी फंक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये वो बैडमिंटन वाली गर्ल्स है सारे, और ये वैलिडरी वाले हैं, लेकिन कुछ ये जो पार्ट है ये बैडमिंटन भी खेलते हैं और ये वहां भी गए थे। Get the point? What I'm saying? So this is the probability of A. This is the probability of A when the B has come, the B given. So that is, therefore I have to say A intersection B divided by probability of B. क्योंकि या in other words जो हम कहते थे कि what is probability is what are the favorable events divided by total. Favorable events are these guys, है ना? मैं कह रहा हूं आपको बैडमिंटन गर्ल्स कौन है जो वैलिडिटी में भी गए थे, वो कौन है? वो ये लोग है ना, है ना? और दैट इज माई फेवरेबल इवेंट। कि अगर मैं ये बात कह रहा हूं आपसे कि मुझे बताओ बैडमिंटन गर्ल्स कौन है जो कि वहां भी गए, है ना, वो है ना उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है? और ये है ना फेवरेबल इवेंट्स। आउट ऑफ ए बैडमिंटन गर्ल 1 2 3 4 6 गर्ल्स है, ठीक है? बैडमिंटन गर्ल्स हाउ मेनी? दिस इज द ए, ठीक है? लेकिन ए में कितने वहां गए? 2। सो ये 2 क्या है? फेवरेबल इवेंट्स। आउट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ ए फेवरेबल इवेंट्स आर ओनली 2, बिकॉज व्हाट माय कंडीशन इज कि वो लड़कियां जिन्होंने बैडमिंटन भी खेल रही थी लेकिन कहां गए? वैलिडरी फंक्शन में अभी। तो ये जो है ये सैंपल स्पेस हो गया उसका, ठीक है? व्हाट विल बी द जो फेवरेबल इवेंट्स होंगे वो कौन होंगे? फेवरेबल इवेंट्स सिर्फ वो 2 लड़कियां। सो इन सेट फॉर्म वो क्या है? इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ये तो सिंपल सी बात, ये भी समझ नहीं आता आपको। अब इसको और कैसे समझाऊं? ओके, तो फिर बताना आप, आप समझ नहीं आया। सो यू शुड नाउ अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना? क्योंकि ये वो लड़कियां हैं जो उधर फंक्शन में गई और ये वो लड़कियां जो बैडमिंटन खेलती हैं। मैं कह रहा हूं मुझे बताओ वो लड़कियां जो बैडमिंटन भी खेलती हैं और वहां भी गई, तो ये फेवरेबल इवेंट आएगा, है ना? लेकिन
टोटल क्या होगा, टोटल ए होगा कि बी होगा, बी होगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बी हैज हैपेंड, बिकॉज आई एम सेइंग द बी हैज हैपेंड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन द बी हैज कम? इट इज डेफिनेटली ओनली दिस थिंग. एंड प्रोबेबिलिटी बोलती है जो फेवरेबल इवेंट्स हैं डिवाइड बाय टोटल. सो टोटल सैंपल स्पेस विल बी ओनली. डज इट मेक सेंस? नाइस. Oh, cancelled out everything. अब सिनेरियो कॉम्प्लेक्स है, जो बेइस थ्योरम का सिनेरियो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. सिनेरियो ये है कि मेरे पास अब कोई इवेंट है, क्या है, कोई से इवेंट डिफेक्टिव. वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्ट एग्जांपल. इवेंट इज डिफेक्टिव. मेरी जो प्रॉब्लम है कि वो ये है कि मैं बोल्ट, जो कि हम प्रॉब्लम कर रहे थे ना परसों, द बोल्ट हम ला रहे हैं बहुत सारी कंपनी से, बहुत सारी कंपनी मुझे बोल्ट दे रहे हैं, ठीक है. अब उस बोल्ट जो दे रहे हैं उसमें कुछ डिफेक्टिव निकल रहे हैं. उसमें क्या निकल रहे हैं? अब मुझे डिफेक्टिव निकल रहे हैं उसमें से कुछ. अब मुझे बोलना है नंबर 1 कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन सारे बोल्ट, क्यों देखो मैंने इससे बोल्ट लिया, उस कंपनी से बोल्ट लिया, इससे बोल्ट लिया, इससे बोल्ट लिया. Say this is A1, this is A2, this is A3, this is A4. मैंने 4 कंपनी से बोल्ट लिया, ठीक है. I got bolt from the 4 company. थोड़ा दिमाग में आराम से समझ आएगा. Be attentive and listen to me and reply back. मैं कह रहा हूं 4 कंपनी से मैंने बोल्ट लिया, ठीक है. इसमें से फर्ज कीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ना, इसकी या इस कंपनी से जो डिफेक्टिव है वो 2% है, इसका 3% है, इसका 4% है. मुझे बोलना है, मुझे बताएं आप कि अब ये जो सारे बोल्ट आ गए ना मेरे पास, सारे आ गए. अब मुझे ये तो एक जैसे हैं, दे आर ऑल सिमिलर. अब इसमें अगर मैंने एक बोल्ट उठाया, वो ठीक भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है ना. पहली बात, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं इसकी फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे पहले, ठीक है. इसकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आप मुझे हेल्प करना इसको डिराइव करने में, यूजिंग दिस थिंग ओनली, जो है इससे पहले हम पढ़ रहे थे. मैं कह रहा हूं व्हाट इज माय क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज कि अगर मैंने ये बोल्ट उठाया, ये डिफेक्टिव निकला, What is the probability of getting defective? What is the probability of getting? ये हम डायग्राम से सीखेंगे, इसकी फॉर्मूला निकालेंगे. लेकिन बेइस थ्योरम इससे आगे बढ़ती है. बेइस थ्योरम में ये जरूरत है कि ये डिफेक्टिव का निकालना, लेकिन बेइस थ्योरम बोलती है कि अब जो मैंने ये फोल्ड निकाला, ये डिफेक्टिव निकला, दिस इज द कंडीशन गिवन. ये मेरा वो ए गिवन बी है ना, सो डिफेक्टिव इज गिवन. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कंपनी ए से आया, ठीक है. ये जो मैंने बोल्ट निकाला वो डिफेक्टिव निकला, वो डिफेक्टिव, इट इज गिवन, इट इज डिफेक्टिव, इट इज गिवन, इट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये जो बोल्ट डिफेक्टिव निकला ये कंपनी बी से आया है. सो लेट मी कॉल इट A2 से आया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ये डिफेक्टिव आया, ये कंपनी A3 से आया. दिस कैन बी ओनली सॉल्व बाय द, क्योंकि बाई की थ्योरम पढ़ाएगा बहनों को, बेइस थ्योरम. सो दिस विल बी सॉल्व बाय द बेइस. लेट अस अराइव टू this is very simple, but I want to see where from this come, right? Otherwise डायरेक्ट फॉर्मूला देंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम सोचेंगे आएगा कैसे. सिनेरियो ऐसा है, देखिए वेन डायग्राम बनाए, साथ साथ बनाए मेरे साथ, बनाए इसको. गेट द पेन, स्टार्ट राइटिंग. ओके, दिस इज फन, दिस इज नॉट समथिंग you get bored or something. It's fun. Now look here what I'm saying. Derive on a formula. Do tell me what is it. मुझे बताओ क्या होगा. मेरा क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने इस सब में से बोल्ट निकाला, वो बोल्ट क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बोल्ट बीइंग डिफेक्टिव, नंबर 1. नंबर 2, अब जो ये बोल्ट आपने डिफेक्ट निकाला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि बोल्ट डिफेक्टिव है जो निकाला था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस डिफेक्टिव बोल्ट बिलोंग्स टू कंपनी ए. व्हाट इज द कंपनी A2, A3 एंड सो ऑन, और यू कैन से ABCD, और यू कैन से XYZ, और यू कैन से A1, A2, A3. सो लेकिन बेइस थ्योरम की कुछ कंडीशंस है. बेइस थ्योरम क्या है, कुछ जिसपे अप्लाई होता है. नंबर वन ये है कि जो कंपनीज है, क्या है, वो डिसजॉइंट है, वो अलग अलग है. सीधी बात है, कंपनी अलग ही है, ठीक है ना. नंबर 1. नंबर 2, जो टोटल मैं बोल्ट ला रहा हूं 100%, इसमें कोई कंपनी छूटनी नहीं चाहिए, मेरे सारे आने चाहिए इसमें. यानी कि अगर मैं उनको सम करूंगा, इट विल बी सैंपल स्पेस. अगर मेरे पास 100 बोल्ट है, इससे 20 लिया, इससे 30 लिया, उससे 60 लिया, इनको अगर मैं टोटल करूंगा वो 100 आना चाहिए जितने मेरे पास है. और ऐसी कोई कंपनी नहीं हो जिसमें कुछ नहीं ला रहा हूं, वो भी प्रॉब्लम में रख रहा हूं. यानी कि कंपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम ए कंपनी ए शुड नॉट बी इक्वल टू 5. ओके, सो आई एम सेइंग आई हैव A1,
to A2, A3, some companies, A4, maybe whatever the companies I have, right? Number one probability है कि these all A1s, A2s and A3s, okay, ये क्या होने चाहिए, इनका सम किसके बराबर होना चाहिए? So I should say number one point is summation of A of I should be equal to sample space. This is the first condition, right? Summation of A of I, ठीक है, सबको मैं ऐड करूंगा, मैंने यहां से लाए 250 बोले, यहां से 100, जो मेरे पास टोटल है वो आना चाहिए इनको सम करके, यानी कि ऐसा नहीं हो कोई कि मैंने कोई छोड़ा हुआ है. Number second, they should be disjoint. They should be what? Okay. Number second, all of these should be mutually exclusive. Okay. They should not be inclusive. They should be mutually exclusive. यानी कि इसमें कॉमन कुछ नहीं है, ये कंपनी अलग है, वो कंपनी अलग है, कोई कॉमन चीज नहीं है. So there should be mutually exclusive. और नंबर थर्ड, जो A of I है should not be equal to 5. ऐसा ना हो कि मैंने कोई इसमें कंपनी जिसमें मैं बोल्ड ले ही नहीं रहा हूं, ठीक है, मैंने एक कंपनी Z भी रखी है इसमें, A1, A2, A3, A4, A5 भी रखी, A5 से मैं एक भी बोल्ड नहीं डाल रहा हूं, मैं उसको भी प्रॉब्लम में डाल रहा हूं, तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी को गड़बड़ कर देगा. इट शुड हैपन कि मैं कोई ऐसी कंपनी भी रख रहा हूं इसमें कि जिससे मैं कुछ ले ही नहीं रहा, उसको अलग ही रखो, क्योंकि उसका तो है ही नहीं, फजूल में है वो फजूल में आएगा ना, उसका क्या फायदा है, मैं जब उससे बोल्ड ही नहीं ले रहा हूं, तो मेरी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी फ्रॉम गेटिंग दैट? No, because it's not sending me any bolt, right? Now if we draw this thing diagrammatically, if I draw this thing what? Diagrammatically, say this is my A1, say this is my A2, say this is my A3, this is my A4. So these are my companies. Now as you could see, this is my total sample space. This is my total, right? Say for example, I will say, let me change the pen color. Let me, for the simplicity, I will say, इससे मैं लाता हूं 1, 2, 3. इससे मैंने लाया 1, 2, 3 बोल्ट्स. इस कंपनी से मैंने लाया 4, 5 and 6. इससे लाया मैंने 7, 8. इससे लाया 9, 10 and 11. ठीक है, ओके. अब ये जो ये कंपनी है, इससे एक बोल्ट मुझे आ रहा है डिफेक्टिव, इससे भी एक बोल्ट आ रहा है, इससे 2 बोल्ट आ रहे हैं डिफेक्टिव, ठीक है, मे बी 7, 8, 9 यहां पर 10, 11, 12, ठीक है, इसको यहां पर देखो क्लब करके 10, 11 और 12, 13 यहां पर है, ओके, और मे बी 14, 15 बाकी यहां पर. अब जो मेरा ये है जो डिफेक्टिव है वो मैं ऐसे बना रहा हूं, देखो वो मैं ऐसे बना रहा हूं, ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, ये हो गया इसके साथ, ये डिफेक्टिव है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव. यानी कि कंपनी A से A1 से मुझे 3 डिफेक्टिव पार्ट आ रहा है, कंपनी ये कौन है, A2 से मुझे 4 डिफेक्टिव पार्ट आ रहा है, कंपनी A3 से मुझे 8 डिफेक्टिव पार्ट आ रहा है, A4 से मुझे 10, 11, 12 डिफेक्टिव पार्ट आ रहा है, इसमें 10, 11 and 12 डिफेक्टिव पार्ट आ रहा है. कंपनी A4 में बाकी 13, 14 है, इसमें और भी था ना 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें मानो 17 है, 19 है, कुछ और है, ठीक है, इसमें भी मानो कुछ और चीजें भी है, नो प्रॉब्लम, इसमें और भी चीजें, इट डजंट मैटर फॉर मी. द सिनेरियो इज लाइक दिस. फर्स्ट कंडीशन, क्या मेरी सैंपल स्पेस जो है ना, सम अगर मैं करूंगा टोटल, जो जितने भी मेरे ए में है, बी में, इसमें वो आएगा ना, टोटल कितने है ना, से आई गॉट अप टू द 19, आई गेस 19 तक है ना, टोटल 19 है मेरे पास. तो अगर मैं A1, A2, A3, A4 का यूनियन करूंगा वो 19 आएगा. तो सीधी सी बात है ना, ऐड करना भैया, क्या सुना है, या मुझे चूर या मसीते मगर मैं ऐड में टोटल करूं. नंबर 1. नंबर 2, दे आर डिसजॉइंट, मुझे पान दे रहा. नंबर 3, मैं कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें 0 है, सब में से कुछ ना कुछ ला रहा हूं मैं, ठीक है. नाउ बेस थ्योरम सेज कि मेरे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, अगर आपको चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है डिफेक्टिव की, कि जो कि क्या आएगा, जो मेरे पास डिफेक्टिव है, तो मैं डिफेक्टिव देख लूंगा. डिफेक्टिव मेरा ये वाला है जो ब्लैक सर्कल है, उसमें कौन कौन है मेरे पास डिफेक्टिव में, मेरे पास 3 है, 4 है, यहां से 8 आ गया, और इसमें से 11, 10 and 12, ये है ना मेरा डिफेक्टिव. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव, आई वांट टू सी दिस.
what is the probability of getting defective, that is definitely there are 3 4 5 6. मैं देखूंगा what is the this D equal to, okay, and when I see this diagram I am seeing it is equal to this 3, and what is 3 in terms of sets, that is A intersection this D, this is my D, this is A1 intersection D. If I say A1, what is A1? A1 is 1 2 3. A1 is what? 1 2 3. What is, अगर मैं इसको और जो मेरा D है उसको करूंगा आपस में इंटरसेक्शन, क्या करूंगा, वो 3 निकलेगा, क्योंकि इसमें भी 3 है, बाकी इसमें क्या बाकी है इसमें, क्योंकि हमारे इसमें 3 8 ये हमारा डिफेक्टिव है ना, इसमें 3 8 11 10 12 है ना, बट व्हाट इज द कॉमन बिटवीन A एंड D, दैट इज 3, ठीक है। तो अगर मुझे ये पूरा D निकालना है, अगर मुझे पूरा इस सिनेरियो में से D, पूरा इसमें से D निकालना है, किसमें से, तो पहले मैं कहूंगा कि इरेज किससे होता है ये ना, हल्का नहीं हो जाएगा सारा, भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है, क्या बोलते हैं, हाँ ये वाला नहीं, यही है फॉर्म ये भाई। सो अगर मुझे ये डी निकालना है ना, व्हाट इज बी है ना, टोटल डिफेक्टिव, टोटल निकालना है डिफेक्टिव का, तो मैं कहूंगा पहले भैया ये जो A1 है ना, इसका इंटरसेक्शन जो D के साथ है ना वो ले लो, वो हो गया मेरा 3, इसको आ गया मेरे पास 3, मैं ये निकालना चाह रहा हूं, सो इसको प्लस करो, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस D विद दिस A2, व्हाट इज द A2 इंटरसेक्शन, व्हाट इज दैट, what is the common between this D, that is this and this set, that is 4, है ना, क्योंकि A2 में क्या है, जो मेरा A2 है उसके अंदर है 4 5 एंड 6, और D में है ये, इन दोनों में कॉमन क्या है 4, तो आ गया 4 भी इससे, इसको मैं प्लस करूंगा किसके साथ, व्हाट इज कॉमन बिटवीन, हाँ A3 एंड D, अब आपको लिखना चाहिए D इंटरसेक्शन A1, D इंटरसेक्शन A2, D इंटरसेक्शन A3, नॉट A1, वो भी सेम है, दैट इज सेम वन एंड सेम थिंग, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी में फिर वो फॉर्मूला में जरूरत आएगा, वी शुड राइट फर्स्ट D देन A1, ठीक है, राइट फर्स्ट D देन A1 ना, ओके, ये समझ आ रहा है मैं कर क्या रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D इंटरसेक्शन A2 प्लस आएगा ना, इसमें से आएगा मुझे 3, इसमें से आएगा 4, इसमें से आएगा 8, और इसमें से आएगा 11 10 एंड 12 आएगा ना, और टोटल वो आएगा ये, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं इस चीज को, ये इंटरसेक्शन है, मैंने क्या फॉर्मूला बताई थी, आगे आप बताओ मुझे, व्हाट वाज द फॉर्मूला, कि मैं कह रहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन डिफेक्टिव, अब मैं कह रहा हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन डिफेक्टिव, yes, that is A intersection B, है ना, अब मुझे ये दिया है ना यहाँ पे, है ना, मुझे ये दिया है, ये किसके बराबर निकलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई है कि नहीं, मुझे ये दिया है ना इस फॉर्मूला में जो पहले हमने किया, A इंटरसेक्शन, अगर मुझे A इंटरसेक्शन D दिया होगा किसके बराबर निकलेगा, दिस इंटू दिस, है ना, तो अगर मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आई कैन राइट इंस्टेड ऑफ दिस, कौन सा पेन है, आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन D इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ D प्लस, इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, दिस वाज A1, दिस इज A2 गिवन D मल्टीप्लाई बाय, राइट, वी कैन डू दिस थिंग, वी कैन डू, इसको हम इसमें लिख सकते हैं। तो अगर हम वापस सवाल के ऊपर आएंगे, कि हम कह रहे हैं कि सवाल ये है कि कंपनी A वो 20% मुझे दे रही थी बोल्ट, कितना दे रही थी, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मुझे उसमें से डिफेक्टिव निकला 2%, सो दैट इज 0.02%, दैट्स 0.02, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव of A, that's 0.02%, है ना,
सो अगर मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ इंटरसेक्शन आई कैन राइट दिस वे, गेटिंग। इसको करने से मुझे क्या निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। इसको करने से मुझे क्या निकलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, wait a second, we go to the question, you will understand this. Keep this thing in mind what I am doing, huh? If you're not getting, watch the video and just concentrate. It's simple. ये पीछे जा रहा है या आगे, पीछे जा रहा है ना। Okay, this is the formula, this is the basic formula of conditional probability. Basic formula of probability we know, okay, that favorable events divided by, and basic formula of conditional probability is this. From this we are actually deriving it, कि अगर probability of b by a बराबर है इसके, तो ये किसके बराबर होगा, इंटरसेक्शन वाला, ये बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई के, probability of b given a multiple by p of a, ठीक है। अब जो इंटरसेक्शन मुझे कहां से निकला, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास कंपनी बहुत सारी है और उसमें डिफेक्टिव है, ये डिफेक्टिव इसमें से भी निकला, 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 ठीक है ना। फिर मुझे मुझे बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव की, क्या प्रोबेबिलिटी कि जो मैंने बोर्ड निकाला वो डिफेक्टिव ही था। तो मैंने जब डायग्राम देखी तो मुझे लग रहा है कि भैया जो ये डी डिफेक्टिव है, उसका इंटरसेक्शन A1 प्लस इसका इंटरसेक्शन A2 प्लस इसका इंटरसेक्शन A3 प्लस इसका इंटरसेक्शन A4, ये है मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, गेटिंग। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, सी द डायग्राम, लुक एट द डायग्राम, जिसमें A1 A2 A3 A4 कंपनीज हैं और उसमें डिफेक्टिव पार्ट है ना। तो डिफेक्टिव की क्या, टोटल डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है, A1 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव है ना। अरे यार तुम लोग को, लेट अस सी द डायग्राम, वेट अ सेकंड, इसको पता नहीं क्या है, अबे कहां है, इसमें रखा है मैंने कि नहीं, no, I think this is the wrong PPT. One second, do not say probability, what is the probability, this is my different, this is my different companies, right, send, give me the bold, and company A में ये पार्ट जो है डिफेक्टिव पार्ट है, ये जो ये वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये डिफेक्टिव पार्ट है, दिस होल सर्कल इज द डिफेक्टिव, ऑल डिफेक्टिव्स। सो व्हाट इज द टोटल डिफेक्टिव भाई, टोटल डिफेक्टिव इज द इंटरसेक्शन ये वाला, इंटरसेक्शन ये वाला, इंटरसेक्शन ये वाला, इंटरसेक्शन ये वाला, सो सबका इंटरसेक्शन, ठीक है ना। डिफेक्टिव वाला इंटरसेक्शन विद A1 विद A2 विद A3, यही बंदा है कौन, टोटल डिफेक्टिव। लेकिन अब मैं इंटरसेक्शन कन्वर्ट करूंगा वो वाली फॉर्मूला से, कि जो मैं बता रहा था आपको कि मेरी फॉर्मूला है कि P A गिवन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय, अब मुझे को ये दिया है ना, इसके बदले ये दिया है ना, ये चीज ये है, इसके बदले में ये लिखूंगा। अब ये दो कौन है, अब ये दो मैं बता रहा हूं आपको, कोई बात कंफ्यूज नहीं होने का। ये मेरा वो इंटरसेक्शन वाला प्रोबेबिलिटी, भी पहले ये फॉर्मूला आप देखो जो मैं बता रहा था अभी तक, ओ भैया की मसला है, ओ पेन सिलेक्ट कर, ओ पाजी समझ आ रहा है कुछ, हिबाशिश तुम दिमाग याद है, ये बोल करा और वो मुझे ऐसी देखने से कोई मूवी देख चल रही है पीछे वाली, ये अभी इसको ख्याल है कि इसने वो सर्व कैसे मारी और जीता कैसे मैच। एंड थोड़ा दिमाग रखो, ठीक है, बियर विद मी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, वरना सिंपल था मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सो बियर विद मी, क्योंकि इट इज मी हु इज वर्किंग, सो एटलीस्ट यू शुड हैव कि आप कॉन्सेंट्रेट करो, दिमाग यहां रखो। अब मैं सवाल पूछूंगा मुझे बताना, तो भाई साहब इतना सारा बोलने के बाद कम से कम ये लाइन तो बोल सकते हो, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, सो बी हियर इज माय डिफेक्टिव, बी इज माय, सो डिफेक्टिव इंटरसेक्शन निकलेगा A1 के साथ, A2 के साथ, AN के साथ। लेकिन इसको मैं लिख सकता हूं इस हिसाब से, वो पहली वाली फॉर्मूला से हमने निकाला जो भी बताया मैंने, है ना, कि भैया ये जो है इसके बारे में लिख सकता हूं कि B गिवन AI इंटू P ऑफ A, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला से निकला हुआ, तो इन सबको मैं यही लिख सकता हूं फॉर ऑल I, ठीक है। तो ये ऐसे सबको मैं लिख सकता हूं, वो समेशन हो जाएगा, और ये मेरे को निकलेगा टोटल, टोटल क्या निकलेगा, टोटल डिफेक्टिव, टोटल डिफेक्टिव आ गया। अब टोटल डिफेक्टिव जब आएगा ना,
क्योंकि मैं बेस थ्योरम लगाने जा रहा हूं इस बात के ऊपर कि भैया जो ये डिफेक्टिव निकला तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कि कंडीशन आ गया है कौन, डिफेक्टिव वाले भाई साहब। इस डिफेक्टिव वाले भाई साहब में क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपनी A1 से आया। सो जो मुझे असल में निकालना है वो मेरे को निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डिफेक्टिव। यहां पे बी लिखा हुआ है, दैट इज आवर डिफेक्टिव, राइट, पास में आए। सो ये मुझे निकालना है, तो उसमें पहले डिवाइड क्या होगा ये मुझे बताओ, मैं खुश हो जाऊंगा। वेरी गुड, क्योंकि अब मेरा सैंपल स्पेस है वो टोटल डिफेक्टिव है। जैसे मैंने कहा था कि जो वैलिडेटरी फंक्शन में गए वो वाली गर्ल्स मेरी सैंपल स्पेस बनेंगी। आई हैव इट स्पार्स इट डाउन। अब मेरा टोटल जितने भी सारे हैं ना वो मेरे सैंपल स्पेस नहीं रहेंगे। अब मेरा समझ कौन रहेगा, डिफेक्टिव वाला इन द टोन्स, इन माय टोन। गॉट इट। सो डिवाइड मेरे को समझ में आ गया, डिवाइड मेरे को समझ में आ गया। तो अब अगर मैं देखूंगा आगे, ये मेरी फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस, तहनील विल एक्सप्लेन व्हाट इज दिस से in terms of defective and in terms of bolts company. This is the company and this is my defective. Now what is the explain, what is this, मुझे इसको read this. What is A given, what is A here? What is given, what is given? Given is defective, defective आ चुका है, that is the goal, बीच वाला जो Venn diagram में गोल था ना बीच वाला, ये जो सारे डिफेक्टिव है उसका टोटल मैंने निकाला है ना। जो मेरा वेन डायग्राम है, ये वाला नहीं था, सॉरी, ये वाली जो थी डायग्राम, उसमें जो डिफेक्टिव था वो मुझे निकल चुका है ना। तो मैं कह रहा हूं कि डिफेक्टिव आ चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव कौन था, वो ए है ना। सो दैट इज इक्वल टू, सो दिस इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन डिफेक्टिव। सो इन अदर वर्ड्स आई एम सेइंग कि जो बोल्ट मैंने निकाला वो डिफेक्टिव निकला, ठीक, मगर वो कंपनी ए का है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है भैया। इसके बाद समझ नहीं आएगा ना, तो ले दे के मेरी जान बची है वो भी ले जाना फिर। ओके, अगर इसके बाद भी समझ नहीं आया ना तो सिंपल प्रोसीजर देखें। एक छोटा सा पानी का मग लाना है, ठीक है, वो यहां रखना, जो ये है ना नाक और ये, वहां पे वो पानी में डुबाना है खुद को, कुछ देर रखना है उधर, 5-10 मिनट। सो नाउ लिसन टू दिस इज द क्रक्स ऑफ द बेस थ्योरम। नाउ लुक एट इट। हेलो, सो आई एम सेइंग कि पाजी जो डिफेक्टिव आया था उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए का है। ओके, वो ये है कि जनाब जो आपका बी गिवन ए है इनटू पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय दिस। अगर याद नहीं रहा ये फॉर्मूला तो इसको देखो, ए गिवन बी है ना, ठीक है, इसको उल्टा करो, मल्टीप्लाई पहले वाले से करो, ये वाला नीचे रखो, ठीक है। तो अगर वैसे नहीं आता तो गोटा ही कर लो तो शॉर्टकट कर लो कि ए गिवन बी है, इसको बी गिवन ए कर लो। हाँ, ये इसकी फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, what is this, what is this, total, this is total defective। मुनज़्ज़ा, इकरा, इकरा, टोटल डिफेक्टिव कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, टोटल डिफेक्टिव मेरा किससे निकलेगा, किसको ऐड करूंगा, पहले इंटरसेक्शन वालों को, लेकिन इंटरसेक्शन वाला मेरे फॉर्मूला से निकलेगा। क्वेश्चन में होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, है ना, तो वो वैसे करना है ना, ठीक है। नहीं, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, ठीक है, अदरवाइज विल बी फ्यूटाइल प्रोसेस, अदरवाइज विल बी ए फ्यूटाइल प्रोसेस। व्हाट इज टाइम बाय द वे, don't just give me just 10 minutes only for me, give me only 10 minutes।